नमस्कार दोस्तों, today we are going to discuss a topic on provisions related to mobility between central autonomous bodies with focus on pro rata gratuity. There is widespread confusion in regard to transfer of gratuity in case an employee gets selected in another autonomous body and he is going there on proper channel basis and through technical resignation. So the question is whether pro rata gratuity will be transferred or not. So there are many autonomous bodies, mainly universities, which are not helping the non-teaching staff and not transferring the pro rata gratuity, whereas the provisions are pretty clear, which we will discuss today. So the basic concept of mobility is mobility refers to a situation where an employee moves from one central autonomous body to another. Here we have given the example of central autonomous body. It can be any, from state to state, center to state, state to center, or between a central government department and an autonomous body, without a break in service and with proper technical resignation. So here these two keywords are important: without break and proper technical resignation. Such mobility allows first retention of past service benefits. So here it is clear, if you are following these two, there is no break in service, there is a proper technical resignation, then retention of past service benefits are there. Second, transfer of service book and leave records are there. Third, consideration of past service for pension and gratuity is there. So these are very important things which are done when there is no break in service, when there is proper technical resignation. So key OM governing this: DOPT OM number 28/10/84, pension unit, dated 29th August 1984. देखिए, लॉन्ग बैक इन 1984 इट वाज डिसाइडेड और तब से ये चला आ रहा है. So the title is Mobility of Personnel between Central Government Departments and Autonomous Bodies. So it provides for counting of prior service in an autonomous body for pensionary benefits, including gratuity, when the employee moves to another central autonomous body or government department. ठीक है, अब आ गया मेन मुद्दा प्रो राटा ग्रेचुटी प्रोविजंस का. व्हेन एन एम्प्लॉई मूव्स फ्रॉम वन CAB टू अनदर, इफ ग्रेचुटी हैज नॉट बीन पेड बाय द प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर ग्रेचुटी प्रीवियस एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं पे की गई है, मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन ए में काम करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन बी में सिलेक्ट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन ए में आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया, विदाउट ब्रेक आप ऑर्गेनाइजेशन बी में चले गए और आपकी कंटिन्यूटी सर्विस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ए ने आपको ग्रेचुटी पेमेंट नहीं की है और आप ऑर्गेनाइजेशन बी में सर्विस स्टार्ट कर चुके हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ए की लायबिलिटी बनती है कि वो प्रो राटा ग्रेचुटी आपकी ट्रांसफ़र करे ऑर्गेनाइजेशन बी को. यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि चाहे आपकी सर्विस 5 साल से कम क्यों ना हो, फिर भी आपकी प्रो राटा ग्रेचुटी ट्रांसफ़र होनी चाहिए. ठीक है. So past service is counted in full for pension gratuity at the gratuity at the new organization. On final retirement, gratuity is calculated for the entire qualifying service, both previous and current. अब यहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ए से ग्रेचुटी ऑर्गेनाइजेशन बी के पास आई है वो जुड़ जाएगी और जब आप रिटायर होंगे तो टोटल ग्रेचुटी कैलकुलेट होगी, यानी ऑर्गेनाइजेशन ए की दी हुई ग्रेचुटी भी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाएगी. द लायबिलिटी फॉर ग्रेचुटी पेमेंट इज शेयर्ड प्रोपोर्शनलिटी, सो प्रो राटा, बाय द प्रीवियस एंड करंट एम्प्लॉयर्स. ठीक है. दिस मीन्स ईच ऑटोनोमस बॉडी पेज ग्रेचुटी प्रोपोर्शनेट टू द सर्विस रेंडर्ड अंडर देम. तो दोनों को ग्रेचुटी देनी है, ऑर्गेनाइजेशन ए को भी, ऑर्गेनाइजेशन बी को भी, और प्रोपोर्शनेट जितना पीरियड उसने जिस ऑर्गेनाइजेशन में
डिवोट किया है उसके हिसाब से उसको ग्रेचुटी मिलेगी। इफ़ ग्रेचुटी इज़ पेड बाय द प्रीवियस एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन रिलक्टेंट होती हैं और वो अपना ग्रेचुटी का पेमेंट जो है एम्प्लॉय को कर देती हैं। तो ऐसे केस में आप ओपीएस से ओपीएस में आ रहे हैं तो अपनी ग्रेचुटी जो है नई ऑर्गेनाइजेशन में जमा करा दें, ठीक है। एनपीएस से एनपीएस में आ रहे हैं तो भी नई में जमा करा दें, बट ओपीएस से एनपीएस में आएंगे तो जमा नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। सिमिलर नेचर का ट्रांसफर होना चाहिए, ओपीएस टू ओपीएस या ओपीएस टू एनपीएस या एनपीएस टू एनपीएस। ओपीएस टू एनपीएस अलाउड नहीं है, ठीक। द एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू काउंट दैट पास सर्विस अगेन फॉर ग्रेचुटी। अगर आपने ले लिया है उसका एनकैशमेंट तो आपको अलाउड नहीं है। ओनली द सर्विस रेंडर्ड इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज काउंटेड फॉर फ्रेश ग्रेचुटी, ठीक। तो ऐसे केस में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बी में जो आपने सर्विस की है वही ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होगी। कंडीशंस फॉर काउंटिंग पास सर्विस एंड प्रोराटा ग्रेचुटी। द रेजिग्नेशन मस्ट बी टेक्निकल, that is submitted for taking up another government/autonomous post with proper permission। तो रेजिग्नेशन जो है आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं नई जगह पे सिलेक्शन पे जॉब करने जा रहा हूँ और टेक्निकल वर्ड उसमें यूज होना चाहिए। देयर शुड बी नो ब्रेक इन सर्विस, ब्रेक इन सर्विस नहीं होना चाहिए। द मूव शुड बी थ्रू प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल मतलब कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं उनको बताया है, आपके यहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं उनको बताया है, या डायरेक्टर हैं, जो भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैं उनको बताया है, और प्रॉपर आपके पास अप्रूवल है कि दे हैव नो ऑब्जेक्शन इन केस यू आर सिलेक्टेड टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे विल रिलीव यू एज पर रूल्स, ये लिखा हुआ होना चाहिए। बोथ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कवर्ड अंडर द सेम पेंशन ऑब्लिक ग्रेचुटी फ्रेमवर्क। देखिए अब ये यहाँ मैं अभी जो बता रहा था कि अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम होनी चाहिए, जैसे सीसीएस पेंशन रूल्स के अंडर है तो दोनों सीसीएस पेंशन रूल्स में होनी चाहिए, या फिर एनपीएस में है तो दोनों एनपीएस में होनी चाहिए, और सिमिलर ऑटोनोमस रूल्स होने चाहिए। कैलकुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ लाइबिलिटी। प्रोराटा शेयरिंग ऑफ ग्रेचुटी लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट ड्रॉन पे एंड क्वालिफाइंग सर्विस। फाइनल एम्प्लॉयर यूजुअली कोऑर्डिनेट्स ग्रेचुटी डिसबर्समेंट एंड कलेक्ट्स द शेयर फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर। तो जो जैसे इस केस में ऑर्गेनाइजेशन ए से ऑर्गेनाइजेशन बी में गए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बी जो है ऑर्गेनाइजेशन ए से उस प्रोपोर्शनेट अमाउंट का शेयर ले लेगा और ग्रेचुटी लास्ट में कैलकुलेट करके टोटल दे देगा। तो ये है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एन एम्प्लॉय सर्व्स 4.3 इयर्स इन सीएबी ए देन मूव्स वाया टेक्निकल रेजिग्नेशन टू सीएबी बी। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, तो यहाँ 4.3 इयर्स उसने सीएबी ए में लगाए, फिर सीएबी बी में चला गया। सीएबी का मतलब है सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, और 12.7 यानी 12.7 इयर्स उसने टोटल सर्व किए सीएबी बी में। 12.7 प्लस 4.3 17 ईयर्स की उसकी टोटल सर्विस है। तो सीएबी ए जो है यहाँ पे 4.3 ईयर्स की ग्रेचुटी सीएबी बी को ट्रांसफर कर देगा। इफ नो ग्रेचुटी वाज पेड बाय सीएबी ए देन ग्रेचुटी इज पेड फॉर टोटल 17 ईयर्स। सीएबी ए पेज प्रोराटा फॉर 4.3 ईयर्स, सीएबी बी पेज फॉर 12.7 ईयर्स। ओएम रेफरेंस है डीओपीटी ओएम 28/10/84, पेंशन यूनिट डेटेड 29 अगस्त 1984, DOPTOM 4/34/2002, P&PW डेटेड 23 जून 2006, और थर्ड OM है 28/30/2004 डेटेड 26 जुलाई 2005। ठीक, तो समरी क्या है, लेस देन 5 ईयर्स आपने बिताए हैं सीएबी ए में, ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन टू सीएबी बी पास सर्विस काउंट होगी ग्रेचुटी के लिए। ग्रेचुटी पेड बाय सीएबी ए एट रेजिग्नेशन, दैट सर्विस नॉट काउंटेड अगेन। फाइनल ग्रेचुटी पेड बाय सीएबी बी फॉर कंबाइंड सर्विस, सीएबी ए और सीएबी बी की ग्रेचुटी जुड़ जाएगी विद प्रोराटा लाइबिलिटी। क्लैरिफिकेशन और प्रोराटा ग्रेचुटी फॉर एनपीएस कवर्ड एम्प्लॉयज मूविंग बिटवीन सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन है हमारा इस पे। की प्रोविजन एप्लीकेबल है ग्रेचुटी अंडर एनपीएस। एज पर नोटिफिकेशन डेटेड एनपीएस में कैसे ग्रेचुटी होगी, 30 मई 2021 का नोटिफिकेशन है। सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन एनपीएस रूल्स, ग्रेचुटी एडमिशनल होती है एनपीएस कवर्ड एम्प्लॉयज़ को। ठीक है,
और द सेम कंडीशंस एज फॉर एम्प्लॉयज़ अंडर द सीसीएस पेंशन रूल्स। जैसी सीसीएस पेंशन रूल्स में गाइडलाइंस है ऐसी ही एनपीएस के लिए एलिजिबल होती हैं एज पर 2021 notification. Minimum 5 years की qualifying service is required for gratuity under normal condition. However, past service rendered in CAB is not forfeited if resignation is technical and the move is through proper channel. ठीक, सेम DOPT OM यहाँ भी अप्लाई होगा 1984 का. This treatment is in line with the spirit of continuity of service under NPS and DOPT/DOPPW guidelines on mobility. It ensures that past service is preserved and gratuity entitlement is not lost, even if less than 5 years were served in the first organization. तो यहाँ क्लैरिटी है. बस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को अपना लिबरल व्यू लेना है और जो प्रोविजंस हैं उनको देखते हुए ग्रेचुटी 5 साल से कम होने की सर्विस होने पे भी देनी है. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. और सभी स्टाफ जो इन मैटर्स को डील करते हैं 1984 के सर्कुलर को और OM को रेफर करते हुए ग्रेचुटी प्रोराटा ट्रांसफ़र करेंगे. थैंक यू वेरी मच.